Hello बच्चों, let's read a given question. The question says there are four particles, each of mass capital M and equidistance from each other, move along a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is. Option A given है under root 2 root 2 gm by r. Option B given है under root gm by r 1 plus 2 root 2. Option C given है half under root gm by r 1 plus 2 root 2. Option D given है under root gm by r. So to understand this question, we need to understand about the concept of the gravitational force of attraction, that is, or we can say Newton's law of gravitation. So which says if we have two masses m1 and m2 separated by a distance r, ठीक है ना, separated by a distance r, so जो force of attraction है between the two masses, it is given by the expression g m1 m2 upon r square. ठीक है, this is applicable to point masses, and also we need to understand okay, this is also known as the inverse square law, और we can say it follows inverse square law क्योंकि distance जो है वो inverse में square है. ठीक है, so this is the basic understanding. Apart from this we need to also understand कि कोई भी particle अगर circular motion में है या कोई body अगर circular motion में है, whether uniform or non-uniform, so we can say that there will be a centripetal force that is acting on the particle, and it is always acting towards the center, and this centripetal force is given by the expression mv square upon r, where r is the radius of this circular path and v is the linear velocity of the particle if let's say particle is rotating or moving in a anti-clockwise direction. So यहाँ पे we need to understand जब भी particle कोई या body circular path में घूमती है तो अलग अलग situation में centripetal force is provided by different scenarios. Let's say for example if we have consider sun and earth rotating about the sun, so we can say कि जो centripetal force provide होती है यहाँ पे it is provided by the gravitational force of attraction between sun and earth. So this is how we can say. अगर हम string की बात करें, so string से अगर हम bob को tie करके means whirl करें, so tension will be providing the centripetal force. So that is what the situation we need to consider and need to remember. So अब यहाँ पे हमारा situation consider करते हैं and we need to use a basic of vectors so that we can have a better clarity and answer to the question. Let's say we have a circular path in which the four particles are moving, and since हमें बोला गया कि they are equidistant from each other, so basically वो चारों जो particles होंगे वो diametrical end पे होंगे, right, तभी वो equidistant कहला सकते हैं. so ये एक चीज़ directly या indirectly we can say given है हमें. ठीक है, अब ये चार है हमारे पास. so let's suppose we will draw the situation. ये कुछ इस तरीके का स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक, so let's say this is our mass number 1, this is 2, this is 3, this is 4. so we need to consider कोई भी एक मास हम कंसिडर करते हैं and we can see क्योंकि ये सिमेट्रिक केस है, so सारी जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका एक का हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें तो बाकी का भी वही होगा. तो व्हाट वी विल डू इज हम अगर फर्स्ट पार्टिकल को देखें ध्यान से, सो फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो कौन से होंगे. एक तो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू 2 on 1, एक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू 4 on 1. अब ये क्योंकि सिमेट्रिक केस है तो दोनों ही वैल्यू सेम होंगी, राइट. और एक होगा नीचे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि दिया जा रहा होगा 3 से on 1. ठीक है ना. सो यहाँ पे हम सारे को वेक्टर्स में डाल देते हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वन पार्टिकल, यानी कि वो क्या क्या होगी. एक तो सबसे पहले रिजल्टेंट होगी F21 और F24 की. तो F21 F24 का अगर हम मैग्नीट्यूड लिख लें पहले, सो F21 F24 का जस्ट वी आर राइटिंग द मैग्नीट्यूड्स. मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा क्योंकि सिमेट्रिक केस है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंस इट इज़ अ स्क्वायर, सो ये 90 डिग्री होगा, सो दिस हैज़ टू बी 45 डिग्री. एंड अगर ये 45 डिग्री हो गया तो वी कैन से दिस लेंथ वी कैन कंसिडर. अगर हम मान लें कि रेडियस है यहाँ तक, ये सेंटर है हमारा, तो रेडियस को अगर हम a मान लें तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 45 की वैल्यू अगर हम देखें, सो cos 45 विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस बेसिकली, तो साइड वाला हो जाएगा √2 into a. सो दिस विल बी द सिचुएशन. सो वी कैन से कि दिस कैन बी रिटन एज g mm, क्योंकि मास तो सबका सेम दिया तो m स्क्वायर अपॉन √2 a का स्क्वायर. so this will be the value, or we can just solve it and get the value, that is gm square upon 2a square. so this will be the
फोर्स का मैग्नीट्यूड वी हैव कैलकुलेटेड। अब हम बात करते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट हमें चाहिए अलोंग दिस, सो हम कह देते हैं उसको एफ आर, एंड एफ आर और F31 को हम सिंपली ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। सो टोटल फोर्स मिल जाएगी हमें ऑन 1 ड्यू टू ऑल द 3 masses. So we can say कि by parallel axis sorry by parallelogram law we can say FR को हम क्या लिख पाएंगे, the magnitude of the resultant that can be written as under root of F21 का स्क्वायर प्लस F41 का स्क्वायर प्लस 2 F21 F41 cos थीटा, थीटा इज 90 ओवर ईयर। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है, सो cos 90 विल बी 0, राइट। तो हम पूरा स्टेटमेंट पहले लिख ही देते हैं, F21 का स्क्वायर प्लस F41 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 F21, या तो हम इसको सिंपली अगर F कह दे तो भी कोई बुराई नहीं है, तो वी कैन से F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा, थीटा इज 90, सो ये टर्म तो उड़ ही जाएगा यहाँ से। सो फाइनली वी कैन से रिजल्टेंट विल कम्स आउट टू बी, सो ये बचेगा हमारे पास √2 इंटू एफ, ठीक है। सो फाइनली वी कैन से देयरफॉर जो एफ आर हम लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज √2 इंटू एफ, एफ हमारे पास है जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, सो √2 इंटू जी एम स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, or it can be written as gm square upon √2 a square. So this is the value of FR we are getting. So now finally we can say कि जो resultant force act कर रही है हमारे particle 1 पे, so it can be written as F net on 1 will be equals to FR plus F31, ठीक है ना। so यहाँ से हम देख सकते हैं this can be written as FR की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है gm स्क्वायर अपॉन √2 इंटू ए स्क्वायर प्लस जी F13 की वैल्यू अगर हम देखें ध्यान से, सो F13 क्या हो जाएगा, F13 विल बी सिंपली कैन बी रिटन एज दो डिस्टेंस का स्क्वायर 2a हो जाएगा, सो इट विल बी gm स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस दैट इज 1 and 3 इट इज 2a, सो 2a का स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर। So finally we can say the result will be this, that is we can write it as to be gm square by a को तो हम a square को तो बाहर लिया जा सकता है, so we are left with 1 upon √2 plus 4, so ये हो जाएगा 4 plus √2 upon 4 √2. So this is the value of net force on 1 we have calculated. Now we can see ये जो net force 1 पे act कर रही है it will be providing this centripetal force, so we can say therefore we can write gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पे जो रिजल्ट आया था 4 plus 2 √2 डिवाइड बाय लेट्स चेक इट, 4 plus √2 अपॉन 4 √2 will be equals to m v स्क्वायर अपॉन r, हमारे लिए a है बेसिकली यहाँ पे m v स्क्वायर अपॉन r। सो यहाँ से हम देख सकते हैं जो रिजल्ट कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल कर देंगे हम, एक a कैंसिल हो जाएगा, सो रिजल्ट विल बी लेफ्ट इज g m अपॉन a, एंड यहाँ पे अगर हम देखें सो इट विल बी 4 plus √2 डिवाइड बाय 4 √2, या फिर अगर इसको हम कॉमनली स्प्लिट करके सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 by √2 प्लस ऑफ 1 by 4, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो होगा v स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन से देयरफॉर v कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ gm अपॉन a, और यहाँ से हम क्या करते हैं 1 by 4 को बाहर निकालते हैं, तो इट विल बिकम 1 प्लस 4 by √2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर हम रिजॉल्व कर लें, सो वी कैन से 1 by 2 बाहर आ जाएगा 1 by √2 बन के 1 by 2 बन के, एंड इट विल बी gm अपॉन a, एंड इसको अगर हम सॉल्व कर लें सो वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2 to the 4, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 √2, राइट। yes, so this will be the result we are getting, and just we have to replace now a with r, क्योंकि हमने रेडियस r a मान लिया है और एक्चुअली में वो r गिवन है। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।